சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் 50 கிராம் ரூபாய் 20 மட்டுமே. சம்மர் வந்தாச்சு. What's your plan for this holiday? எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand. पार्षद ने कहा, देखिए एक तरफ ये गवर्नमेंट जो तरुण का हादसा हुआ अभी कुछ दिनों पहले वो खड़ी है, वही गवर्नमेंट हमें कल पीटती है सरेआम, वही गवर्नमेंट हमें पीटती है सरेआम, वही गवर्नमेंट हमें बोलती है मारो इस को, मारो इस को, इनकी तो औकात नहीं है. ये क्या டெல்லியை சேர்ந்த ஜோதி கௌதம் ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் மத்திய டெல்லியின் ராஜிந்தர் நகர் பகுதியில் கவுன்சிலராக பதவி வகித்து வருகிறார். இவர் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர். கடந்த மார்ச் 11, 2026 புதன்கிழமை அன்று மேற்கு டெல்லியில் உள்ள ராஜேந்திர நகர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாலை பணிகளை பார்வையிட சென்றார். அவருடன் அக்கட்சியின் உறுப்பினர் சஞ்சய் பைரவா என்பவரும் சென்றார். இருவரும் சாலை பணிகளை மேற்பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த பாஜக எம்எல்ஏ உமாங் பஜாஜ் ஆதரவாளர்கள் தகராறில் ஈடுபட்டனர். அப்போது எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்கள் திடீரென சாலை பணிகளை மேற்கொண்டிருந்த தொழிலாளிகளை கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். பின்னர் அந்த கும்பல் பெண் என்று பாராமல் கவுன்சிலர் ஜோதியையும் அவருடன் வந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி உறுப்பினரையும் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பெண் கவுன்சிலர் உட்பட மூவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து காவல்துறையில் புகார் அளித்தபோது அவர்கள் புகாரை வாங்க மறுத்துவிட்டதாகவும் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்பி சஞ்சய் சிங் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இதை வெளியிட்டு டெல்லி காவல்துறை மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினார். ஆனால் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் பிரவீன் சங்கர் கபூர், பாஜகவினரால் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் தொண்டர் வழிக்கு விழுந்து காயமடைந்தார் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த சாலை கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏவால் தோண்டப்பட்டது. இந்நிலையில் பாஜக எம்எல்ஏ உமாங் பஜாஜ் உள்ளிட்டோர் இந்த சாலையை சீரமைப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்று கூறினார். தலைநகர் டெல்லியில் முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சம்பவம் மார்ச் 12 அன்று ஆம் ஆத்மி கட்சியால் பத்திரிகை சந்திப்பில் வெளியிடப்பட்டது. மார்ச் 14 அன்று MCD அவையில் இதுகுறித்து பெரும் அமளி ஏற்பட்டது. ஆம் ஆத்மி உறுப்பினர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். ஜோதி கௌதம் தாக்குதலை பட்டியலின பெண் மீதான அடக்குமுறை என வகைப்படுத்தி கண்டனம் தெரிவித்தார். பாஜக தரப்பு சாலை பணி கிரெடிட் தகராறில் ஆம் ஆத்மி தொண்டர்கள் அமளி ஏற்படுத்தியது என மறுக்கிறது. காவல்துறை விசாரணை தொடர்ந்து வருகிறது. ஆனால் FIR இன்னும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். के आसपास की ये वारदात है, उसके बाद से अभी तक हमारी FIR नहीं ली गई है. पता नहीं इनके ऊपर क्या प्रेशर है, क्या नहीं है. विक्टिम हम हैं, हमारी MLC हुई है, हम हॉस्पिटल गए हैं, हम यहाँ पे गुहार लगा रहे. एक चुनी हुई पार्षद गुहार लगा रही है कि मेरे साथ अभद्रता हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे वॉलंटियर के साथ मारपीट हुई है, आप हमारी FIR लिखिए. लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है. सिर्फ एक प्रेशर की वजह से हो रहा है कि यहाँ पे आप आइए, बैठिए, लेकिन आपकी FIR नहीं ली जाएगी. तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं जब तक हमारी FIR नहीं होती. शायद हम दलित हैं इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि यही कह के हमें संबोधित किया था कि तुम चूड़े चमारों की क्या औकात है, जाओ जहाँ जाना है कर लो. तो शायद वो यही दिखा रहे हैं और हम गुहार लगा रहे हैं, आगे कोई हमारी सुन नहीं रहा. तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या दलितों की बस इतनी ही हैसियत रह गई है कि वोट देने के टाइम वो हिंदू हो जाते हैं और जब उनके साथ अन्याय होता है तो वो दलित हो जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता है कि एक दलित महिला और एक दलित पुरुष की ये FIR नहीं लिख रहे. खड़े होके विधायक उमंग बजाज ने, जिसे अपने गुंडों के साथ पिटवाया है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा. इतनी गुंडागर्दी चल रही है, खुले पे चल रही है, लेकिन एक FIR नहीं लिखी जा रही एक चुनी हुई पार्षद की. ये हालत है इस वक्त दिल्ली की, ये हालत है दिल्ली की महिलाओं की. जब चुनी हुई पार्षद की कोई वैल्यू नहीं है तो सोचो आम जनता के साथ जब अपराध होता होगा, किसी महिला के साथ कोई अपराध या छेड़खानी होती होगी, तो क्या ये FIR लिखते होंगे? नहीं, ये उन्हीं को खौफ बना के वापस भेज सकते. आज मेरे साथ चुने हुए इतने पार्षद खड़े हैं, तब मुझे इतना सताया जा रहा है कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही. तो आप एक आम महिला की सोचो दिल्ली में क्या हालत है, देश में क्या हालत है. ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ दोहरी मानसिकता. अभी हाल ही में रेखा गुप्ता जी जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सिर्फ एक मीम और मजाक में बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने सदन में कहा था कि मेरा मजाक उड़ाया जाता क्योंकि मैं महिला हूँ.
मैं क्या हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। उन्हीं के पार्टी के विधायक ने मुझे मारा है, मेरे साथ वॉलंटियर को मारा है। अब रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगी? वो महिला थी, मैं महिला नहीं हूँ। वो भी काउंसलर से आज मुख्यमंत्री बनी है और मैं भी उसी सदन में काउंसलर हूँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं आम आदमी पार्टी से महिला हूँ, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ। अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये FIR कब तक होगी, रेखा गुप्ता और मोदी सरकार इस पे क्या संज्ञान ले। पार्षद ने कहा, देखिए एक तरफ ये गवर्नमेंट जो तरुण का हादसा हुआ अभी कुछ दिनों पहले वो खड़ी है, वही गवर्नमेंट हमें कल पीटती है सरेआम, वही गवर्नमेंट हमें पीटती है सरेआम, वही गवर्नमेंट हमें बोलती है मारो इस को, मारो इस को, इनकी तो औकात नहीं है, ये क्या करेंगे हमारे, ये हम पे चढ़ के बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो ये जो उमंग बजाज के गुंडों ने हमें कल मारा बुरी तरह, मेरा ये नाक फाड़ दी, इनके टांग पे तोड़ दी। तो मैं जो आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, ये इन लोगों की से खड़ा हूँ क्योंकि ये लोग खुद कह रहा था कि मारो इनको, वो मारो, वहाँ विधायक की देखता मैं देख लूंगा। और वो 4 जो लोग वो सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना पकड़ा ना ट्रेस किया। इनका मोबाइल छोड़ लिया, अब तक भी ये मोबाइल नहीं आया जिसमें वो रिकॉर्डिंग है हमें मारते हुए, इन पे मारते हुए, वो रिकॉर्डिंग है उनके पास, वो मोबाइल उनके पास है। अभी ACP साहब सब हमें अभी तक वो मोबाइल का पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। वाकई में मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक भ्रष्ट तानाशाह गवर्नमेंट है, जिसके सारे MLA और काउंसलर क्या काम कर रहे हैं, सरेआम मार रहे हैं, सरेआम। ये मेरे साथ सारे आम आदमी पार्टी काउंसलर वर्ग सब खड़े हैं। आप समझ लीजिए हमारी नहीं सुनते, जब इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया है, पूरी दिल्ली में पूरी इंडिया में न्यूज चल रही है, उसके बावजूद भी हमारी FIR नहीं कर रही, तो मिल सकता है कि अब क्या हो सकता है हमारे साथ। हमें नहीं पता, हमें कल शायद मार भी दिया जाए, हमें असैसिनेट कर दिया जाए, हमारी हत्या कर दी जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि हमारी बात को पहुंचाइए और जितना हो सके इसको फैलाइए न्यूज को कि सरेआम एक MLA सरेआम पिटवा रहा है और रोड पे कह रहा है कि मारो इन को, मारो इन को, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी औकात यही है। इस तरह से हमारे पास जो वर्ड, हाँ इसी प्रकार से दिल्ली के एक पूर्व विधायक हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला 2025 का, सोमेश शौकीन। वो सोमेश शौकीन ने एक FIR उनकी एक शिकायत पे दर्ज की गई 7 मार्च को। क्या FIR है वो? सोचिए, वो विधायक रह चुके हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे 2025 में। उनको धमकी आ रही है 10 करोड़ रुपए की वसूली की, सोमेश शौकीन को, कि 10 करोड़ रुपए दो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हिम्मत आप देखिए कि बाकायदा मैसेज भी हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं, फोन कॉल आ रही है। 6 मार्च को जब अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, शाम को 5:55 पे धमकी की कॉल आई। उसके बाद उन्होंने FIR के लिए एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हुई 7 तारीख को, और तब से लेकर आज तक पुलिस कमिश्नर साहब मिलने का समय नहीं दे रहे। दिल्ली के एक पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, 10 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की जा रही है, और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बार बार अनुरोध करने के बावजूद गोलचा साहब के पास समय नहीं है मुलाकात करने का। तो मैं इस विषय को, संसद का सत्र चल रहा है, मौका मिलते ही ये दोनों प्रकरण देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। और गृह मंत्रालय, जिसका मैं मेंबर भी हूं, मैं होम अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूं, जो पार्लियामेंट की होम अफेयर्स कमेटी है उसका सदस्य भी हूं। तो इसलिए उस कमेटी के सामने भी ये अत्याचार, अन्याय, हत्या, लूट की घटनाएं जो दिल्ली में हो रही है उसको रखूंगा। அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க।